Hello, very good morning to all students. Today I am going to explain rare stanza, rare activities of chapter 5, separation of substance. Activity 7. Please students listen carefully and you should also have to read chapter. Okay. Activity 7. Take a mixture of sand and salt. How will we separate this? We already saw that hand picking will not be a practical method for separating these. Now आपको एक मिक्सर लेना है सैंड एंड सॉल्ट एंड आपको उसको सेपरेट करना है. इट्स इम्पॉसिबल. आप हैंड पिकिंग से सैंड एंड सॉल्ट जो ऑलरेडी मिक्स हो गए उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते. इट्स इम्पॉसिबल. Now keep this mixture in a beaker and add some water to it. Now leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. And what does the decant liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixer at the beginning? Now आपको एक बीकर लेना है जिसमें आपको वाटर डालना है. You have to pour the water in the mixture of sand and salt. Now after some time you see that जो sand थी वो बॉटम में as it is बॉटम में पड़ी रहेगी, सेटलिंग डाउन हो जाएगी. तो दिस मेथड को कहते हैं डिकेंटेशन. दिस मेथड से आप सैंड को अलग कर सकते हैं. यू कैन सेपरेट. ओके. एंड सॉल्ट ऑलरेडी डिजोल्व हो जाता है वाटर में, सॉल्यूबल है, और सैंड है वो अनसॉल्यूबल है. ओके. नाउ नेक्स्ट stanza. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द decaying liquid. Now transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the battle? See figure number 5.13. Take a metal plate with some eyes on it and hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. And what do you observe? Let all the water in the kettle boil off. केटल में वाटर भरा है सॉल्ट सी, जो सॉल्ट उसमें ऐड किया था हमने. ना आपने नोटिस किया होगा जैसे ही वो हीट होगा वाटर और उसका केटल का आपको लीड क्लोज कर देना है ना. आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि जो केटल में से जो स्टीम निकलती है वो एवेपोरेट हो के सी आपको पिक्चर नंबर 5.13 में दिखाई दे रहा होगा. देखो. And when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Condensation means droplets हो जाते हैं. जब भी आप लीड उसका कवर करके वो केटल को जब हमने उसका वाटर हीट करने के लिए रखा है तो उसका जो लीड है उसमें ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे. ये मेथड को बोलते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं, वाटर वेपर हो जाता है लिक्विड का, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. एंड डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड एंड आफ्टर ऑल द वाटर वाज इवेपोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? आफ्टर 1 आवर अदरवाइज हाफ एन आवर जब आप केटल का पूरा वाटर बॉईल कर देते हो तब उसमें क्या रिमेनिंग रहता है? डू यू नोटिस? नाउ वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ decantation, filtration and evaporation, and yes, also condensation. Now Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. Now see, हमने क्या प्रोसेस की आगे के स्टेंजा में मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रिमाइंड दे देती हूँ आपको. हमने जो प्रोसेस की वो डिकेंटेशन किया, देन फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. एंड सी देन tried the method of suggested in activity 7 to recover the salt, and she found however that she could recover only a small part of the salt that she had taken. And what could have gone wrong? Can water dissolve any amount of substance? पहली को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा.
सॉल्ट एंड सैंड ऑलरेडी मिक्स हो गए थे, फिर वो उसमें से सैंड तो हमने रिमूव कर दिया, द मेथड बाय विच डिकेंटेशन, एंड सॉल्ट को हम कंडेंसेशन बाय इवेपरेशन प्रोसेस से सॉल्ट में से वाटर तो इवेपरेट हो गए, स्टीम होके बॉयल हो गया, लेकिन जो बाद में जो रेयर सॉल्ट बचता है उससे ये मेथड समझ में आती है कि यहाँ पे इवेपरेशन ओनली small parts of small red salt remaining. Now in chapter 4 we found that many substances dissolved in water form a solution, and we said that these substances are soluble in water, and what will happen if we go on adding more and more of this substance to a fixed quantity of water. इसी तरह आपने चैप्टर 4 में रीड किया होगा कि मोस्ट ऑफ ऐसे सब्सटेंस है जो सॉल्यूबल है इन वाटर में, और जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है उसका भी हमने वहाँ मेंशन किया था. ओके, नाउ एक्टिविटी 8. You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water, and pour half a cup of water in the beaker. Now add 1 teaspoonful of salt and stir it well. Now until the salt dissolves completely, again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. Figure 5.40 में आप देखिए dissolving salt in water. हमने हाफ एन कप ऑफ वाटर लिया, उसमें सॉल्ट ऐड किया, फिर उसको स्टीर किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से टीस्पून फिर से सॉल्ट ऐड किया, एंड फिर से हमने स्टीर किया वेल. नाउ आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड इट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर? इफ यस, दैट it means that normal salt can be dissolved in the amount of water we have taken, and the solution is now said to be saturated. हाफ एन आवर वाटर में हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया 1 टीस्पून, ओके, फिर उसको स्टीर किया, देन थोड़ी देर के बाद फिर से 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट डिज़ोल्व करने के लिए फिर से उसको स्टीर किया. तो आपने नोटिस किया होगा जितनी भी बार हमने 3 to 3 टाइम सॉल्ट डिज़ोल्व किया, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर कप, हाफ जो कप हमने वाटर लिया उसमें इतना सारा सॉल्ट डिज़ोल्व करना इम्पॉसिबल हो गया था. तो ये सॉल्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेटल्ड. नाउ हियर इज़ ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विथ सैंड, एंड परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सेटल्ड सॉल्यूशन. Now the undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered, and she could solve her problems by using a large quantity of water. इसी तरह पहली को भी ये जो सॉल्यूशन कर रही है वो इतना सारा वाटर में से सैंड सेपरेट करना, देन सॉल्ट ऑल्सो, तो वो भी कंफ्यूज हो गई थी, और उसने भी यही सोचा कि ये मेरे साथ क्या रॉन्ग हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन रॉन्ग. देन आफ्टर सपोज सम टाइम के बाद उसने रिकवर किया, उसने सॉल्व किए प्रॉब्लम कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो सॉल्ट ऑब्वियसली डिज़ोल्व हो जाएगा. तो इस तरह से उसने सारे सॉल्यूशन थे वो कवर किए उस तरह से, एंड डिज़ोल्विंग salt in large quantity of water. Suppose you do not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. If there is some way that water could be made to dissolve more salt before the solution get settled, and let us try and help पहेली out. तो जब तक उसने ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर नहीं लिया तब तक ये सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं कर सकी, तो ये सॉल्यूशन वो सेटल्ड कहलाता है. नाउ एक्टिविटी 9, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है. स्टूडेंट मैं आपको जूम लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको ये घर पे सबको करनी पड़ेगी. ओके, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट. नाउ अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, दिस विल गिव यू ए सेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. Now add a small quantity of salt to this settled solution and heat it. And what do you find, and what happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker, and does it dissolve? Now if yes, can some more salt is dissolved in the solution by heating it? Now ये आपको एक्टिविटी घर पे करनी है. ओके, फिर आपको मुझे रिजल्ट्स भी बनाने हैं. ओके, मैं आपको जूम लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी.
कि आपको ये कैसे करना है. ओके, नाउ लास्ट एक्टिविटी 10 है. टेक 2 glass and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir it till the salt dissolve, and go on adding salt and 1 teaspoon at a time until the solution settles. Now record the number of spoons of salt that dissolved in the water. Now टेबल 5.2 में सब्सटेंस है सॉल्ट एंड शुगर. फिर आपने जो नंबर ऑफ स्पून उसमें ऐड की है सब्सटेंस को जो डिजॉल्व इन वाटर में, वो आपको रिकॉर्ड रखना है. एंड रिपीट द सेम एक्टिविटी. पहले सॉल्ट के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है, देन यू हैव टू रिपीट विथ शुगर. फिर आपको रिकॉर्ड करना है, ऐसा टेबल बनाना है. फिर आपको ने जो नोटिस किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है. सी टेबल 5.2. ओके, ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है. डोंट वरी, जूम लेक्चर में सेकंड टाइम आपको एक्सप्लेन कर देंगी दैट हाउ यू गेट दिस. ओके, फिर आपको डिस्कस भी करना है मेरे साथ. ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. प्लीज़ स्टूडेंट, यू शुड ऑल्सो हैव टू रीड दिस चैप्टर. ओके, एंड सी कीवर्ड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स. गूगल टेस्ट में ये पोर्शन में लेने वाली हूँ कीवर्ड्स का. ओके, तो बी रेडी, मेमोराइज दिस ऑल दिस कीवर्ड्स, रिटन एंड ओरल प्रैक्टिस ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.